کتاب البیوع کے اندر ہے ربا کا مسئلہ، لیکن ربا تو اس میں بھی سودے میں بھی ربا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس مناسبت سے کتاب البیوع کے اندر لایا، اس کو کتاب الربا کے اندر نہیں لایا گیا ہے، کیونکہ یہ ملے جلے مسائل ہیں۔ سودے کے اندر اگر سود ہو تو سودا حرام، ربا اگر ہو تو سودے کے اندر تو وہ بھی حرام ہے۔ اس وجہ سے یہاں بارہ کتاب البیوع کے اندر آیا ہے، کیونکہ یہاں سودے ہی کے اندر جو سود ہوتا ہے، جو چیزیں سود ہو سکتی ہے ان کو بیان کیا ہے۔ اس کی کچھ تفصیل پہلے سنو۔ ربا کی اصل 3 قسمیں ہیں۔ ربا کی جو شریعت کے اندر 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے ربا القرض، یہ اس کی اعلیٰ کوالٹی ہے سود، اور عرب کے اندر کیا بلکہ آج کل بھی جو ہے یہ چلتا رہتا ہے۔ یہود و نصارہ کا سارا دار و مدار جو ہے اسی پر ہے، اسی کو انہوں نے پھیلایا ہے اس وقت پوری دنیا کے کہ بینکاری سسٹم لایا، نئی نئی طریقے کی ایجاد کی ہے، ویگیانک چٹانی طریقے ہوتے، یہ پہنچتے پہنچتے پھر چاہے وہ پوری دنیا کے اندر جو نیشنل کمپنیاں ہیں تو ان کے پیچھے جو ہے سودی یہودی سرمایہ کاری ہے، اور انہوں نے اس کو سارے کو سود پر مبنی قرار دے دیا۔ ان کو 1% 2% پہنچتا ہے، روپے میں 1 پیسہ ان کو ملتا ہے، باقی دوسرے لیتے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر ہم سب لے لیں گے تو ہمیں کون دے دے گا، اوپن ہو جائیں گے ہماری پالیسی۔ تو 1 روپے میں 1 پیسہ اگر ان کو مل گیا، یہ 1000 روپے میں ان کو 1 روپے مل گیا، اور یہ اربوں کا کاروبار ہوتا ہے، ان کو ایک کمپنی سے لاکھوں آمدنی ہو جاتی ہے، پھر کروڑوں، پھر اربوں میں آمدنی بن جاتی ہے، 1 پیسہ کر کے یہ پہنچ جاتا ہے، ان کو بیٹھے بیٹھے مل جاتا ہے۔ تو پورا دنیا کو انہوں نے اس وقت سود میں جکڑ دیا ہے۔ شکلیں اس کی دوسری بنائی ہے، ایسی بنائی ہے کہ تو کبھی سمجھ بھی نہیں آتی ہے، سمجھنے میں بھی پریشانی ہوتی ہے، علماء کو بھی پریشانی ہوئی، عوام کو بھی پریشانی ہوئی، پنگے بھی ہوئے۔ بعد میں اس کو غیر مقلدین نے تو بالکل ہی اس کو فتویٰ دے دیا تھا کہ سود اس میں نہیں ہے، نوٹوں میں سود نہیں ہے، وہ تو دراہم تدانجب کے اندر۔ بعد میں جب یہاں علماء کی طرف سے پھٹکاروں پر پڑی ہے تو انہوں نے پھر فتویٰ ہی دینا چھوڑ دیا اور بدل دیا۔ یہ اس وجہ سے ہوئی ہے کہ صورتحال انہوں نے اس کو ایسا تشکیل دے دیا ہے، اس کا جال ایسا انہوں نے بنا ہے کہ وہ جس کی پہچان شکار کر ہی نہیں پاتا ہے، وہ دانوں کے پیچھے دوڑتا ہے اور پھنس جاتا ہے، اور بعد میں روتا ہے۔ جا کر کسی بھی جو آج بینک سے لون لیتا ہے بڑا خوش لگتا ہے اس کو، میں نے گاڑی نکالی 10 لاکھ روپے کی، 1 لاکھ بھرنا پڑا، 1 لاکھ میں 10 لاکھ گاڑی آپ مل گئی مجھے۔ عمر بھر کماتا رہتا ہے، وہ دیتا رہتا ہے، بھرتا رہتا ہے، اس کو ختم نہیں ہوتا ہے، بعد میں ہوتا ہے، اور تب تک وہ کہتے ہیں کہ قسطوں جو ہے نا قسط بھرو، تو اس پر وہ قسط نہیں بھر پاتا ہے تو ڈبل سود ہو جاتا ہے۔ ویسے پہلے بھی سود لگا ہوا ہوتا ہے، اب 5-10 سال وہ گاڑی چلائی، وہ 10 لاکھ کی گاڑی تھی، اب وہ 2 لاکھ کی بھی نہیں رہی، 3 لاکھ کی بھی نہیں رہی، اب وہ سوچ رہا ہے میں اس گاڑی کو بیچ دیتا تو اس میں 2 لاکھ آئے گی، جبکہ میں آج تک بھرتا رہا تو مشکل سے مجھے جو ہے اصل میں سے اگر وہ 12 قسط بھرتا ہو تو 8 لاکھ کا بھی قرضہ ہے، تو اب میں کیا کروں؟ تو پھر بس پھر وہی بے ایمانی، غفلہ بازی، کسی کو وہ
फंसाता है, वो किसी को फंसाता है, ये सारा फसाद जो है इसी चीज़ का है। इस वजह से शरीयत तो ने तो इसको कुरान ने इसको जो कहा ये अल्लाह के साथ ऐलानी जंग है, तो ये समझ में नहीं आता कि खुदा के साथ ऐलानी जंग क्या है, कि अल्लाह ताला उधर से मिसाइल फेंकते, तो मिसाइल नहीं फेंकता। मकसद ये है कि अल्लाह ताला ने जो इंसान के लिए हलाल एक सिस्टम दिया है, जायज़ सिस्टम दे दिया है, ये उसके खिलाफ जो है टकराव है, उस सिस्टम के खिलाफ। जब टकराव होगा तो नतीजा ये निकलेगा, जो खुदा की दिए हुए सिस्टम के साथ टकराएगा वो खुद पाश हो जाएगा, खुदा के सिस्टम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खुदा का सिस्टम बनाया हुआ निज़ाम जो है वो ऐसा है, उसमें किसी किस्म की कोई खराबी पैदा होने का इम्कान नहीं होता। कोई चलाए, कोई माने उसको, कोई अपनाए उसको या ना अपनाए। तो इस बहरहाल रिबा कर्ज जो है ये अरबों में भी उस वक्त था, आज भी है, और ये उसका खात्मा कोई बहुत बड़ी सुपर पावर ही आकर कर सकती है, अल्लाह की सुपर पावर। ये दुनिया की ये सुपर पावर है, ये खबीस ये तो पूरी इसमें फंसे हुए। अल्लाह की कोई सुपर पावर, कोई पैगंबरी शान का कोई शख्स उठना चाहे उसका खात्मा कर सकता है, इस निज़ाम को कोई ख़त्म नहीं कर सकता है। वही है तो सुपर पावर, इमाम महदी है या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, उसमें ये सलाहियत भी होगी, ताकत भी होगी, खुदा की तायद भी होगी, तो इस दुनिया की सिस्टम को ख़त्म कर सकता है, वरना ये ख़त्म होने वाला नहीं है। तो रिबल कर्ज क्या है? किसी को कर्ज दे दिया नकद शक्ल में, पहले ज़माने में सोना था, सोने के सिक्के होते थे, पोंड होते थे, जो पोंड कहा जाता था, दराहिम होते थे, बाद दराहिम का नाम फारसी में अशरफिया पड़ गया, अशरफिया होती थी। तो उसके बाद जो है तो वो तांबे वाबे के सिक्के भी आते थे, वैसे वो चेंज के लिए आते थे, लेकिन असल मालियत ही थी। आज से 100 साल पहले तक यही चलता था, ज़्यादा अरसा इसका नहीं। फिर ये नोटों का सिलसिला इन्होंने ईजाद किया, क्योंकि उसने इसकी भी एक तारीख है, एक दफ़ा मैंने बताई थी उसकी क्या तारीख है, नोट कैसे ईजाद हुआ। तो अब वो नोटों के अंदर इसको तो किसी को दे दिया, और वो ये समझते हैं, यहाँ भी कई लोगों ने मुझसे कहा, या कुछ लोग वो कहते हैं कि बाबू हम क्या है, मेरे पास पैसा है, मैं कारोबार नहीं कर सकता हूँ, किसी को देता हूँ, कारोबार कर लेता है, तो मुझे जो है उसका नफ़ा पहुँचाता है। ये ज़रूरत है इंसान की, खुद पैसा जो है हो उसके पास, लेकिन वो खुद काम नहीं कर सकता है, तो दूसरे को दे दे कर ले। इसका एक शरई तरीका है, एक यही सूरत। शरई तरीका यह है कि उसको मुजारबत करते हो, मुजारबत खैरियत जायज़ है, कर ले मुजारबत, नफ़ा नुकसान में शामिल रहे ताकि कोई पंगा न हो जाए। बहरहाल जो भी है उसके फ़वाइद है, शरई तरीका है, मनसूस है इसमें अहादीस के अंदर, उसको कर ले। लेकिन मुजारबत नहीं करता, वो कहते हैं क्या है, वो तो कहते हैं बस मुझे जो है तुम कमाओ, कुछ करो, क्या न करो, मुझे जो है 1000 पर 100 रुपये चाहिए पर मंथ, मुझे पहुँचना चाहिए। जिस तरीके से कर लेते हैं उसको आमदनी चलती रहती है। ये रिबल फजल है, आला की सूद की, उसी को कुरान ने कहा, मना किया। कुरान के अंदर नस से साबित ये सूद की एक किस्म, इसमें किसी का नहीं इख्तलाफ है, कुछ है कुरान के अंदर मनसूस है, तो फिर क्या इख्तलाफ होगा। हुज़ूर अलैहिस्सलाम किसी जो है और भी इसकी खबासतें बताइए, गुनाह इसके बताइए, ये गुनाह ऐसा है, ऐसा है, ऐसा सूद खार पर क्या गुनाह होगा, वो क्या होगा। ये एक किस्म हुई है। दूसरी किस्म है सूद, उसको कहते हैं रिबल फजल। रिबल फजल में क्या होता है कि आदमी जो है सौदा कर लेता है, चीज का चीज के साथ सौदा कर लेता है। सौदा नकद का कर ले, चीज का कर ले, नकद का भी हो सकता है सौदा,
तो और चीज़ों का भी सौदा हो सकता है। अब इसकी दो सूरत है, एक ही जिन्स की है या दो जिन्स की। अगर दो जिन्सों की है तो मर्जी है इन सब लोगों को, गेहूं को जौ के एवज बेचता है, जिस पर भी ये राजी हो जाए, इसमें कोई सूद। लेकिन इसमें एक और चीज है, इसी के साथ साथ एक इम्कान, एक बच्चा पैदा होता है इनका, वो है रिबन नसीहत। अगर जिन्स के जिन्स को बेच दिया तो उस वक्त तो नगदो नगद होना चाहिए, हाथों हाथ होना चाहिए। हाँ, जिन्स एक हो तो दोनों सूद उसमें है, उसमें रिबन फजल भी है, रिबन नसीहत। यानी ज्यादती भी, अगर एक ही चीज है क्या मजबूरी है बेचने की, जब नहीं, इसके पास भी वही चीज है, इसके पास भी वही चीज है, ये उसको कहता है मेरे साथ इसको बेच दो, तबादला करो, तबादला कहे वो कहे असल में सौदा होगा। तो बेचने का क्या मकसद, तो कुछ न कुछ तो उसका होगा ही मुनाफा, कुछ न कुछ फायदा होगा ही, तभी तो बदल देते हैं। एक चीज तो शरीयत ने नजरअंदाज कर दी, वो ये है कि जय्यत और रगी, इसको एतबार नहीं, क्योंकि जब ये उसके एवज वही चीज बेच देता है, उसी चीज के एवज बेच देता है, तो कुछ न कुछ तो इसको होगा, इसके उम्दा क्वालिटी के बीज के काबिल ये है, मेरे ये है कि खाने के काबिल है, वो जय्यद होगा या रगी होगा। तो ऐसे सौदे कर लेते हैं लोग, लेकिन इसमें यह शर्त है कि जय्यद और रगी का कोई एतबार नहीं होगा, बराबर। और बराबरी के साथ यह है कि हाथों हाथ भी होना चाहिए, इधर से ये है उधर से वो है, अगर एक ही जिन्स का। वरना अगर जय्यद रजी को नजरअंदाज किया है, क्योंकि इसी वजह से लोग एक दूसरे को चीजों को तबादला करेंगे, वरना क्या फायदा उनका, बहनी इसके पास भी बहनी है, वही क्वालिटी है, उसी खेत का वही गेहूं है, वही क्वालिटी है, तुम्हारे पास भी ये है, तो क्या बेवकूफी है, तो तुम्हें कहते हो नहीं जो तुम ये अपना दे दो, मैं अपना दे दूंगा। ठीक है, अगर देते हो तो बराबर शराबर, उधार भी नहीं होना चाहिए, कर ले, लेकिन कुछ न कुछ इसमें होगा पेश नजर। तो वो पेश नजर या तो जवदत होगी, एक की तरफ जवदत होगी, दूसरी तरफ रदात होगी, तो इसमें अब जवदत रदाती की वजह से ये आपस में सौदा कर रहे हैं, इसके आला क्वालिटी के हैं और मेरी ये है, लिहाजा मैं इसको जो है तबादला करूंगा। तो तबादला करने की सूरत के अंदर ये जय्यद रजी को तो शरीयत ने नजरअंदाज किया है। वैसे ये हदीस नहीं है, वल जवदत व रदातुस सवाउ, जिसको बाद उलमा ने हदीस भी लिखा है, बाद लोग लिखते हैं कि ये भी हदीस में आया है, लेकिन हदीस का मफहूम तो है ही, लेकिन बाइन ही अल्फाज है जिसके नहीं, ये तो शरीयत ने नजरअंदाज कर लिया, इसी बिना पर करेंगे लोग। अलबत्ता ये है कि ज्यादती का क्या मकसद है, अगर इसको दे देंगे कमी ज्यादती तो नतीजा निकलेगा कि ये सूद हो। सूद की क्या वजह है, उसकी वो शाहुल्लाह मुहद्दिस दहलवी की किताब या रहमतुल्लाह वासिअ को पता करना चाहिए कि क्या वजह है, वो अलग मसला है, वो फलसफा में बयान करना नहीं। तो दोनों चीजें यहाँ होगी है, यानी असल तो रिबल फजल है, लेकिन यहाँ नशा भी पैदा होगा, उधार देना, क्योंकि उधार देना भी तो एक फायदा उठाना है, और ये तो कर्ज होगा, और कर्ज से जो भी फायदा उठाएगा, क्योंकि अगर उधार होगा एक साइड, क्योंकि चीजों के अंदर जब चीज के साथ तबादला होता है तो उसमें मदी मुतय्यन होता है, समन मुतय्यन होता है नुकूद के अंदर, वो समन ही बन सकता है, वो मदी नहीं बन सकता है। मदी बन जाएगा समन समन के लिए, किसी वक्त वो भी बन सकता है, लेकिन उसूलन अगर कोई चीज बेच दी समन के लिए, तो यह तय शुदा है ये चीज जो है मुबी है, ये समन है। तो वहां तो उसूल है कि मुबी तो उधार नहीं हो सकता, जैसे पहले पढ़ चुके हो,
लेकिन समन में सहूलत के लिए, लोगों की सहूलत के लिए दे दिया। समन हर एक के पास मतलब नहीं होता है, इस चीज़ की जरूरत होती है अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करने में, लिहाजा वहाँ तुझे देखने के लिए। लेकिन वो भी उदार रहे तो ये क्या ड्रामा बाजी है, फिर क्या चीज़ बेच रहा था, बेचे ना, जब है नहीं उसके पास क्यों बेचे। लाता दे माला से अंदर भी हैदान के लिए। अच्छा, अब चीज को चीज के बस बेच दे तो इसमें यह तय नहीं है कि समन कौन है, मदी कौन है। ये भी मदी भी हो सकता है, समन भी हो सकता है, ये चीज भी जो है समन भी हो सकती है, मदी भी हो सकती है। इसमें इसी वजह से शरीयत ने ये कह दिया है कि बस बराबर शराबर भी बराबर भी होना चाहिए, वो हाथ हाथ भी होना चाहिए, दो दो। अच्छा, ये एक सूरत है इसकी। यहाँ अगर कुछ थोड़ा सा भी ज्यादा हो गया, कुछ एतबार करके उधार कर लिया, चलो बाद में दे देना, ये नशा होगा, सूर्य पर नशा होगा। और अगर जायद कर लिया, चलो मैं जो है 1 किलो के एवज 1.25 किलो दे दूंगा, तो ये केवल फर्ज होगा। समझे इस मसले को हलाया। कुछ नहीं तुम्हारे जाना मशीन अंदाजा लगता है ना, तुम्हारे काम में कुछ नहीं। हिदाया से लेकर कुदूरी से लेकर सरागकाया में से हिदाया में और किताबों में पढ़ने के बाद तो अब यहाँ है दोनों की। एक सूरत इसकी ये है कि ये तो उस सूरत के अंदर था कि जब जिन्स मुत्तहिद था, जिन्स मुख्तलिफ था। और एक सूरत इसके अंदर यह है कि जिन्स मुख्तलिफ है, जिन्स मुख्तलिफ है। अब जिन्स अगर मुख्तलिफ होगी तो रिबल फजल होगा, रिबल फजल नहीं होगा, रिबल फजल अब नहीं होगा। जौ के एवज उसने जो है बेचा है गेहूं को, तो कमी जाती के साथ बेचते, अलबत्ता हाथों हाथ होना चाहिए, ये हाथों हाथ होना चाहिए। वजह इसकी ये है कि क्योंकि वो भी मुतय्यन नहीं है, वो भी मुतय्यन नहीं है। तो और वो भी जो है जब मुतय्यन नहीं, ये मुबी है या ये मुबी है, तो नतीजा के जब मुबी में तो उधार नहीं हो सकता है। लिहाजा अगर उधार होगा तो मुबी उधार हो गया, तो ये नशा हो गया। तो इसी वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो चीजें तो वाजिब है, अलबत्ता ये रबन से इन्नमा रबी फिल नस्या, हुजूर ने फरमाया। सूद असल में होता है किसमें, उधार। तो मकसद क्या है ये कि इसकी तरफ तो रुजू करो, या असल इन चीजों को ख्याल रखो। वो तो हर एक को पता चलता है ये तो सूद है। रिबल फजल तो जाहिरन है, रिबल कर्ज तो और जाहिर है, लेकिन ये रिबल से आम तौर समझ में नहीं आता है। यहाँ समझ लेकिन क्या फर्क पड़ेगा इससे, लेकिन हुजूर ने फरमाया यहाँ रिबल से आया। ये हदीसों में रिबल फजल भी और रिबल नसीब कुरान में मनसूस नहीं है, अलबत्ता हदीसों के अंदर इसकी सराहत सही हदीस है। ये देखो, ये है सौदे का हुक्म, ये फर्क कर लेना, अच्छी तरह ध्यान में ये रख लेना। ये सौदों के अंदर है, जब एक चीज दूसरी चीज के भी तुम सोचो, करो आराम, ये सौदा जिस वक्त, और ये सौदा ये होता है, चाहे इसको तबादल नाम रखे, चाहे अदल बदल नाम रखे, यहाँ भी कश्मीरी में कहते हैं बदलाव, ये भी जो भी हो। तो इसमें ये दो सूरतें हैं। यहाँ पे ये सूरत है कि एक जिन्स की हो वो बता दिया, या दो जिन्स की हो तो उसका भी मसला वाज़ा हो गया है। एक जिन्स की हो तो दोनों सूद उसमें आया सब। एक जिन्स के तो एक जिन्स के हो तो फिर दोनों सूद हो गए इसमें, यानी इसमें फजला भी सूद होगा, अभी बताया अभी जन से निकल। और अगर दो जिन्स की हो, एक सूद ये दो जिन्स के,
اس میں ٹھیک ہے کمیز آپ کسے بیچ سکتے ہیں وہ جو کہ گندم خریدنا چاہتا ہے مکئی کے چاول خریدنا چاہتا ہے الگ الگ چیزوں سے کر لے یا لیکن ہاتھوں ہاتھ وجہ وہی ہے کہ وہ بھی مبی یہ بھی مبی اس میں ادھار کیسے ہو سکتا ہے نصیحت نہیں ہو سکتا دسا ینسوں کے معنی آتے ہیں ادھار کے یہ بھی پتہ ہے اچھا یہ تو ہوتا ہے یہ سودے کے اس کے علاوہ ضرورت لوگوں کی ہوتی ہے یہ تو لوگوں کی ضرورت ہے تو اس وجہ سے اس کو اس طریقے سے ایک ضابطہ دے کر کنٹرول کر لیا گیا سودے تھے انسان کی مجبوری دنیا کے اندر سودے ہوتے روز سودے ہوتے رہتے ہیں اچھا نقود کے عوض وہ بھی الگ جنس ہو گئی ہے نقود کے عوض سونے کے عوض یا چاندی کی سکیورٹی یا آج کل کے موجی نوٹوں کے عوض کوئی چیز خرید لی تھی اس میں کیا ہے جیسے وہ ریٹ ویٹ طے ہوگا اس میں یہ ہے نقود کے اندر کیونکہ طے ہے سمن تو متعین ہے اس وجہ سے وہاں نشہ جو ہے اس میں سمن میں جائز ہے وہاں تو طے ہے وہ بھی طے ہے وہاں یہ نہیں کہہ سکتے یہ بھی ہو چاہیے یہ بھی ہو یہ نہیں ہو سکتا ہے سمن طے سمن کے لیے اللہ تعالیٰ نے خلقتاً یہ پیدا کیا ہے یہ کیا کہتے ہیں اس کو سونا اور چاندی کو یہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے یہ قدیم عرصے سے جب سے یہ چیزیں دریافت ہوئی ہے قدیم عرصے سے شرائع جب سے وجود میں آ گئے میرے خیال میں حضرت نوح علیہ السلام کے دور سے کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کا دور جو ہے کچھ ترقی یافتہ تھا ہر چیز میں لوگوں نے کچھ شرک میں بھی ترقی کی تھی ماشاءاللہ بہت ترقی کی تھی بت تراشتے تھے وغیرہ وغیرہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت سے ہی شاید یہ سونا چاندی وجود میں آ گیا تھا لوگ اس کا کاروبار کرتے تھے تب سے یہ ہے خلقت اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا حضرت آدم علیہ السلام کا دور وہاں تک تو یہ رہا تھوڑا سا یہ وہ سیدھا سادہ دور میں تو شرائع ورائع تو نہیں آئے تھے لیکن حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ شرائع کا آغاز ہو گیا ہے کہ لوگوں کو اب قانون کے ذریعے سے کنٹرول کیا جائے قانونی شریعت کے ذریعے سے کنٹرول کیا جائے تو اس وقت یہ احکام آگے تو وہیں سے یہ ہوا ہے سمن کیا ہے وہ کیا ہے یہ کیا ہے ان چیزوں کو وہاں سے استعمال کرتے تھے مختلف طریقوں سے ڈیلوں کے اعتبار سے وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جو ہے سکے ہی نہیں ہوتے تھے بلکہ سونا کچھ تھوڑا سا لے لیا اتنا سونا دے دو 1 تولہ دے دو 1 کیرٹ دے دو 2 کیرا دے دو 3 کیرا دے دو اور بس چینج کی ضرورت پڑتی تھی شادی کو اس کے لیے کرتے تھے دراہم ہوتے تھے سکے بھی اس وقت ہوتے تھے سکوں کو دراہم کہتے تھے اور دنانیر کہتے تھے سونے کے دنانیر کہتے تھے اس کو کہتے تھے دراہم باقی یہ کوئی ضرور نہیں ہوتا تھا ٹکڑوں میں بھی ہوتا تھا تو یہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو چاہے یہ عددی بنائے جائے ایک ہی وزن کے سکے بنائے جائے چاہے یہ وزن کے لحاظ سے اس کا تعین کیا جائے دونوں طریقے سے یہ سمن متعین ہے اور اس کے عوض جو چیز خریدے وہ مبیح ہے وہ متعین مبیح ہے اور سمن جب ہوگا جب سمن کی لیکن یہی ہے اور آج کل کے نوٹ اس کے قائم مقام ہے اس وجہ سے آج کل بھی جو ہے ادار ہو سکتا ہے سمن ادار ہو سکتا ہے وہ بھی ادار کسی صورت یہ تو ہے سودوں کا معاملہ ایک چیز لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے اور ایک چیز کی ضرورت قرض کی جو ہے آدمی یہ بھی ضرورت ہے انسانوں کی اور بار بار ضرورت اس کی پڑتی ہے اب اس میں جو ہے شریعت نے کہا کہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے میں یہ کروں اللہ تعالیٰ نے کہا مجھے بھی تو قرض حاصل دے دو اگر تمہیں بھروسہ ہے تو دے دو قرض حاصل کیا اعمال کرتے رہو میرے پاس قرض حاصل میں خود دیتے ہوں اس طریقے سے اس کی حسن ادائیگی کروں جب واپس کروں گا تمہارا قرضہ تو ایسے ادا کروں گا کہ تم کہو گے کہ کاش میں نے سارا ہی زندگی جو اللہ کے قرض اللہ کو قرض میں ہی دی ہوتی
सारा माल भी, जान भी, वो भी, ये भी जो मेरे पास था मैं सारा अल्लाह ही को करने दिया होता, उसको पैसा हो गया, क्योंकि उसने अदा करने में मेरा कोई सानी नहीं है। तो कर्ज जो है एक सवाब का काम है। कर्ज अगर है, कर्ज किसी को दे रहा है, ये भी जरूरत है इंसान का, फिर ये कर्ज ही रहना चाहिए, सौदा न बनना चाहिए। वो पीछे जो आया है कि एक भाई को जो है भाई दर भाई मत करो, नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन बैअतैन, अन बैअतिन फी बैअतिन, तो ये भी मना फरमाया। इसी वजह से वहाँ ये कहा गया कि चलो तुम जो है ले जाओ इस वक्त करने में, कोई गल्ला वाला है तुम्हें जरूरत है, लेकिन अगर कल जो है तुम दे दोगे तो उसका जो है यही दे देना वापस, वरना तो जो है इसके नकद दे दे, फिर इतने पैसे दे देना, वो उस वक्त मजबूर होता है। तो अब ये इसको क्या कहेंगे हम, सौदा कहेंगे, कर्ज कहेंगे? दो भाई हो गए, दो अक्द हो गए, दो भाई नहीं हुए, दो अक्द, एक अक्द कर्ज का और दूसरा जो है सौदे का। अब इसको क्या कहेंगे, सौदा कहेंगे क्या कर्ज कहेंगे? शरीयत ने कहा नहीं, ये जान साजी नहीं, बस कर्ज कर्ज, सौदा सौदा। कर्ज के जो उसूल है वो रहेंगे, सौदे के जो उसूल है वहां वही लागू हो जाए। तो कर्ज बहरहाल इंसान की ये जरूरत है कि जिसमें कर्ज अगर वो वादा कर लेगा कि मैं मुझे कर्ज दे दो 1 महीने की, आमतौर ऐसे कहते रहते हैं, ये लाजिम नहीं होता इस पर। कल ये नहीं कह सकता है कि वो 1 महीने के बाद जो है तुमने नहीं दिया है लिहाजा अब तो मेरा टैक्स लगेगा, तो भी सो रहा है कम वक्त की। ये तो जाने में पाक के बाद में क्या कह रहा था मैं, अब जो है ना उसको दे दो टैक्स 1 महीने के, तुमने वादा कर दिया था तो अब जज दिया। वादा करना वफा जरूरी है, ठीक है वादा पूरा कर, इसमें भी अल्लाह सवाब देते हैं, लेकिन फर्ज करो उसने 1 महीने के बाद 2 महीने के बाद दे दिया, वो कर्ज वापस किया, साल के बाद वापस किया, ये उसे नहीं कर सकता है। अब जो है 1000 के जो है 1100 ये नहीं कर सकता। हाँ, खुद वो दे दे अपने तौर से, इन्हें ये तय नहीं होना चाहिए, तय कर लिया तो सूद, तय कर लिया तो बिल्कुल। अलबत्ता अगर वो अपने तौर से अदा कर लेगा, उधर से ज्यादा दे देगा, उसको शरीयत में हुस्न अदायगी कहा, बल्कि कहा ये बेहतर है। कभी कभी ऐसे 8-8, 10-10 साल जो है कर्जा रहता है, तो या देता नहीं कम वक्त, या नौबत नहीं आती, या उसके पास वसत नहीं होती है, या उसका खाने के गर्ज होता है, बाद में वो जो कहीं किसी मौलवी का बात सुनता है तो वो कहता है ये तो इसका तो जवाब देना पड़ेगा, मैं सोच रहा था ये तो मेरी चालाकी की वजह से मेरे हाथ में आ गया, दबा दूंगा, लेकिन बाद में उसको एहसास हो जाता है 10-15 साल के बाद। अब उस वक्त वैल्यू नहीं होता है उसका, उस वक्त जो उसने 10,000 लिए थे उससे तो उसने जमीन का कनाल खरीदा होगा, यहाँ एक मतलब इतना फायदा उठाओ, 10,000 उसको जो वैल्यू था उसका फायदा उठाया होगा। आज 10,000 तो 10 रुपए की उसके मुकाबले। इस वजह से शरीयत ने कहा इज्जत से हुस्न अदायगी तो जायद उसको दे दो, ये बेहतर है देना, बल्कि बाइस सवाब भी है, ये हुस्न अदायगी में आता है। कर ये सूद जो आता है ना, सूद आता है मादे ताई हो जाए कि इतना दे दो, रिबल कर्ज, ये रिबल कर्ज जो है इसमें मुआहदे में आ जाए। अच्छा, ये इसमें इसको ये भी गर्ज नहीं होनी चाहिए कि मेरा इस पर कर्जा है लिहाजा मैं इससे कुछ और फायदा भी उठा लूं, कोई भी फायदा उठा ले। वही इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह तो वो मशहूर वाक़ा है कि वो देवार के साए की नीचे बैठते थे, वो कहते थे डर लगता है कहीं ये भी जो है उसमें, हालांकि ऐसा मसला नहीं है, साया उसके बाप का थोड़ी था, तो साया देवार का था, वो सूरज की वजह से था। ये तकवे का आला नयार है, इसमें कोई जो है वो हो सकता है, इसमें कोई एक ही ऐसा होगा जो ऐसा एहतियात करता है। लेकिन
हालांकि ये नहीं है, लेकिन यह कुल्लु कर्जन जर्र नफन को रिबा, ये इस वईद की जो है ये डर था कि ये खतरनाक चीज है। तो गोया कि उसके जहन में ये भी न होना चाहिए, जहन में भी न होना चाहिए और अमलन भी नहीं होना चाहिए कि मैं इससे कोई फायदा उठा लूँ, वो करूँ, ये करूँ, ये करूँ। तो जो भी फायदा उसके जहन में होगा वो सूद के जमीन में आएगा। कर्ज है दे दिया सवाब की नीयत से, हाँ, फिर ये तो है इसकी सवाब की नीयत, फिर वो पता नहीं है तू जो है सवाबी की नहीं समझेगा या दबाने की नहीं समझेगा, बेईमानी करेगा, वो तुम्हारे ऊपर वबाल है। और उसको हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ये जुल्म के जेल में आएगा, मत जुल्म देना, जुल्म गनी गनी का टाल मटोल कर देना, उधर से गनी भी है और उधर से वो टाल मटोल भी कर रहा है, ये जुल्म के जेल में। अब उस खबीज की पकड़ हो गई, भाई है तुम्हारे पास करना अदा करो, क्यों टाल मटोल कर रहे हो? तो जुल्म की जेल, जुल्म का पता ही है कि जुल्म अल्लाह तबारक व तआला जो है जालिम को बख्शेगा नहीं आसानी से, अल्लाह ये है कि वो मजलूम से जो है उसकी माफी तलाफी कर रहा है, वरना तो वो हुकूकुल इबाद नहीं से। तो इधर भी हिदायत है, सवाब की नीयत से दे दो ताकि लोगों की हाजत निकले, उधर से भी हुक्म है कि इसकी फौरन अदायगी करो, जो ही तुम्हें वसत हो जाए तो ये समझो इसका एहसान है, इसने मुझे कर्ज दे दिया है, अब मैं क्यों जो है इसको टाल मटोल करूँ, क्यों परेशान करूँ, क्यों इसको जो है लटका करूँ। तो कर्ज का मसला अलग, जरूरत पड़ती है इसका मसला अलग, सौदे का मसला अलग। कर्ज के अंदर चाहे सराहतन तयशुदा हो, इसका ज्यादती रिबा, इसका तयशुदा रिबा हो, वो भी क्या है, रिबा ही है, वो तो वाजा रिबा है। लेकिन अगर पेश नजर उधर से खींच रहा है, इधर से खींच रहा है, कभी कोई काम का दिन ले रहा है, कभी वो कहता है मेरा वो काम करो, ये काम करो, वो भी बेचारा वो सोच रहा है कि आप क्या करेंगे, इसका कर्ज के नीचे में दबा हुआ हूँ तो करना ही पड़ेगा ताकि और सहूलत मुझे देगा, ये उसी जन्म में आएगा, रिवाही के समझ में आएगा, चाहे ये दलालतन हो चाहे ये सराहत या लुजूम आ जाए इसका या इल्तिजामन हो। रिबा चाहे इल्तिजामन हो या लुजूमन हो, दोनों सूरतों के दुरुस्त सूरत है, ये भी याद रख लेना चाहिए। इल्तिजामन का मतलब यह है तयशुदा, लुजूमन ये है कि तयशुदा नहीं है, लाजिम आ जाता है, वो अपना फायदा उठा रहा है, कोई बात नहीं करता, मुझे अभी जरूरत नहीं है, ठीक है बाद में देकर, तो लेकिन इधर से उससे ले रहा है, कभी काम ले रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, ये सूदी के ज़िम्मन में होगा, ये वुजू बनाएगा, ये लाजिम आ जाएगा। जैसे ईमान के सिलसिले कुफ्र कहीं इल्तिजामन होता है, कहीं लाजिमन होता है, ये भी मैं समझा चुका हूँ। तो ये कर्ज का मसला है। तो सौदे का मसला उस तरीके से वाजा, वहां भी क्या रिबा है सौदों के अंदर, और यहाँ भी क्या रिबा है, ये भी वाजा है। अब ये तफसील ज़हन में रखने के बाद